Hi Umesh. Hi Sanya. Hi Hi Rohit. Shani. Hi Hi Rohit. Rohit, Hi. hello. I hope I have pronounced your name right, Shani. Yes, you have. Thank you. Because they prepped me for it. Like, don't take her name in a wrong way. That's fine. Thank you. दहशत Started फैलाई So, है। warning people now. I'm Rohit Vats from News 18, and it's a very unusual film. I watched the film and I loved the whole premise. And Sanya also like uh, I don't know what to call it: absurd, bizarre, abstract. How do you define it? Who, Sandhya or the film? The film is The very the nice. the of course film is it's a nice film. The situation that Sandhya is going through is, I would call it, she's confused. Um, she can't comprehend that why is she not behaving. She knows that she's not behaving in a normal way, but she wants to because she has experienced this before with her billy, Katrina. तो अभी क्यों नहीं फील हो रहा, शी कांट कॉम्प्रिहेंड इट एंड बेसिकली शी फाइंड्स आउट कि शी is not feeling the way she should because she was not happy in the marriage, and whatever it was her projection that maybe everything was okay with Astik, you know. So it is a bizarre situation, but I'm glad that she went through it because she found herself. She found out that this is not what she wants in life. She wants to be happy, and that happiness is within. वो किसी और के फैसले लेने पर नहीं होगा, वो खुद के फैसले लेने पर होगा, वो पगलेट होने पर होगा. And very nice plug in there. And I also like because you Sania, you are doing this role, so there was this fluctuation, oscillation, like the way we are used to see you in different roles, very Yes. bubbly, very chirpy, and then suddenly you stop right there when where we think that like she's going to explode or something major is about to happen, but you stop yourself right there. So I was just wondering that what was your brief, like what was the brief that Umesh gave you for your role, for your character? We actually did a lot, like we did read the script a lot of times, you know. We basically wanted to, I and sir wanted, हम दोनों चाहते थे कि we I live Sandhya's life for those 40 45 50 days, you know. We sat on the script together and we actually talked about every single scene. सिर्फ मेरा ही नहीं, but all the scenes in the film. Her relationship with her amma, her relationship with Bauji, her brother-in-law, Parchun, her friend with Akanksha, with everyone in the film. We sat on it. On a psychological level, we worked on it. I remember on a second reading, I told sir that I want her to have anxiety. और वो वैसा एंजाइटी नहीं दैट वी नो, बट वैसा कि जो स्मॉल टाउन में किसी को होता है, घबराहट हो रही है वैसा घबराहट वाला. वाला. तो scenes में you will notice that she's constantly doing this with her leg, whether it's the first frame in which you see Sandhya and she's on her phone, she's doing this, and when she meets Akanksha, she's sitting and like she's extremely anxious. She doesn't know what she's going through. उसको पता नहीं है कि she was not happy in the marriage, वो but she's in denial that no, it was because of her. When she meets her, then she's putting the blame on her. नहीं, it's because of you. Astik never was in love with me. कि तुमने उसको कुछ करा था. He was, my relationship with him was fine. और the fact that she never noticed that Astik का फेवरेट कलर ब्लू है जो आपने पहन रखा है. वो भी मुझे कोई और आके बता रहा है कि हिज फेवरेट कलर वाज ब्लू. मैंने इतने गौर से कभी अपने पति को देखा तक नहीं था, बट दिस ब्यूटिफुल प्रोजेक्शन दैट आई हैड कि वाह, व्हाट अ रिलेशनशिप, व्हाट अ मैरिज आई हैड विद आस्तिक, यू नो. एंड आई हैव टू थैंक सर. एक तो स्क्रिप्ट लेवल पे बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट थी. मुझे इतना कोई काम नहीं करना पड़ा. मुझे सिर्फ साइकोलॉजिकली आई रियली वांटेड टू लिव हर लाइफ बिकॉज आई फेल इन लव विद हर व्हेन आई फर्स्ट रेड पगलेट. और मुझे ऐसा था कि ये कितनी सही लड़की है, मुझे इसकी ज़िंदगी जीनी है फॉर दोज 50 डेज. इनफैक्ट शूट के बाद भी ऐसा नहीं है कि मैंने उसको छोड़ दिया. शी स्टिल विद मी, शी स्टिल इनसाइड माई सिस्टम, एंड आई लव इट. रोहित, आपने बहुत अच्छी बात जो ये सवाल बहुत अच्छा किया था आपने, क्योंकि
संध्या को समझने में उसमें क्या है कि जो जो लिखा हुआ है ना, उसका जो सब टेक्स्ट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छे कलाकार मिले, बहुत अच्छे अभिनेता मिले जिन्होंने इंटरनलाइज कर ली पूरी कहानी, और उसके बाद जो उन्होंने परफॉर्म किया है, समझ के परफॉर्म किया है। आपने फिल्म देखी है, आपको इसीलिए शायद आपने सवाल पूछा कि जो संध्या की जर्नी है और जो ग्रीफ से जुड़ी हुई है, और साथ में उसके लाइटर मूवमेंट्स, फैमिली के मूवमेंट्स, तो अगर आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो आप देखेंगे जो ग्रीफ के 5 स्टेजेस होते हैं, संध्या उन 5 स्टेजेस से गुजरती है। It starts with denial, then it becomes anger, then it becomes bargaining, then it's depression, and finally it is acceptance. तो वो जितनी खूबसूरती से सानिया कर पाई, वो शायद इसीलिए हो पाया कि बिल्कुल जुड़ गई वो उस किरदार के साथ। और ऐसा कुछ सिर्फ हमारी बातें ही होती रहती थी, और बातें करते करते इतनी खूबसूरत सी चीज़ें उसमें से छोटी छोटी मैं कहता रहता था कि हमारे सेट पे मैजिक हो रहा है। तो वाकई में वो मैजिक हो रहा था, क्योंकि जो लिखा था वो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ और आप मेरे देखने से आप बदल जा रहे हैं। तो वो तो लिखा हुआ है, और लिखे हुए को परफॉर्म करेंगे उसमें कितना बदलाव आ जाएगा, लेकिन वो बदलाव कैसा होने वाला है, उसमें क्या इम्प्रोवाइजेशंस आने हैं, आपकी कितनी समझ है। सो आई थिंक आई वाज ब्लेस्ड टू हैव सच अ वंडरफुल कास्ट, और जिन्होंने पूरे किरदार को, कहानी को इंटरनलाइज कर लिया। मैं इनको लोग अभी कह रहा था कि मैं कहानी सुनाता था एक्टर्स को, उसके बाद वो लोग मुझे पूरी कहानी सुनाते थे, और मेरी कहानी नहीं सुनाते थे, अपनी कहानी सुनाते थे, और वैसी ही कहानी सुनाते थे जो मैंने सुनाई उनको। तो लोग किसी एक स्तर पे इससे जुड़ गए थे। और मुझे शायद ऐसा लगता है कि वो, जैसे कहा ना, भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसे घर से तेल ले आओ जहाँ पे कोई मरा ना हो। तो हर घर को इससे गुजरना पड़ता है, हर फैमिली को इससे गुजरना पड़ता है, और कौन सी फैमिली किस तरह से अलग अलग तरीके से, उसके जो रिश्तेदार हैं, जो किरदार हैं, वो अलग अलग तरीके से इसको करते हैं, और उसी में गम में आनंद आने लगता है और मज़ा आने लगता है। तो वो जो सुर लगाना था कठिन था, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी से कोशिश की हम लोगों ने बहुत। नहीं, ये बहुत अद्भुत बात है। वाकई आप बहुत सही कह रहे हैं कि वो जो दुख की घड़ी है, लेकिन वहां पर भी एक अजीब ही तरह का हास्य है उसमें। जी। जिसमें मतलब आपके पास कलाकार भी बहुत बेहतरीन थे, सभी हैं वहाँ पे, राजेश तेलंग, आशुतोष बेशक राणा, बेशक। रघुवीर यादव, शिवा जी चड्ढा, सभी हैं वहाँ। जी और ऐसा लग रहा था कि सान्या उस पूरे सेटअप का एक पार्ट है और नहीं भी है। जी उसको जैसे कि सानिया को वहां उठा के रख दिया, जी और फिर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे तारतम्य में बिठाए उससे। जी जी। So Sania, this brings me back to you. How did you manage, like, these are two different worlds and you had to strike a balance there? Two different worlds where? In the house? Yeah, within the house, like you Within are the different, house. others are different, the tangent are totally different. Yeah, I think 5 महीने बहुत ही कम टाइम था for Sandhya to realize that maybe her marriage was not, like she was not happy in this marriage, you know. और वो 5 महीने जब आप किसी, मतलब वो हनीमून पीरियड ही नहीं ख़त्म होता उसका, वो हनीमून पीरियड कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था आज तक। और उसका मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें, मतलब शी नोज़ दैट एवरीबडी इन द हाउस इज़ मोर्निंग एंड शी इज़ नॉट नॉर्मल and she wants to talk to someone. She can't go and talk to her mother. She won't get it. She tries to talk to her friend, but she can't help her. She's just like I saw, matlab I don't know how to help my friend. हाँ, मतलब वो She goes and talks to Dadi. right. Listen, see her photograph. See ये तो इतनी अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. She just wants somebody to listen कि एक्चुअली दादी का जो किरदार था, जो सान्या के साथ रिलेशनशिप था, तो उसका किरदार क्या है कि इट्स नॉन जजमेंटल। राइट, वो आपको जज नहीं करता। तो पूरे घर में सलाह नहीं दादी दे रही, थी, वो जज नहीं कर रही है, वो समझ ही नहीं पा रही, तो जज क्या करेगी। तो सिर्फ एक जो इमोशन इमोट होता है दादी से, अपने आप में वो स्नेह का है, प्यार का है। तो जस्ट द एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड कॉन्फिडेंस, जो कि शायद संध्या हमेशा तलाश कर रही थी। इसीलिए जो छोटी छोटी बातें जाके, सो दादी वाज लाइक हर कॉन्फेशन बॉक्स। तो वो जाकर के उससे पूरा कॉन्फेस करती थी, क्योंकि उसको कोई जज नहीं करता। और हमें कोई जज करने लगता है तो हम आधी बात जो है ना अपने दिल में रख लेते हैं। राइट। तो बहुत बहुत कम ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार मिलते हैं जो आपकी बात सुन लेते हैं और मतलब जज नहीं करते आपको।
Chayani, so how did you see the story? Because like they are part of one world, but you are seeing everything from a different perspective, from an objective distance. Absolutely, absolutely. Um, sorry, COVID times. No, no, we test it every day. So, you know, when I, honestly, when I, hey, when I read the script for the first time, it spoke back to me, the script and the world. And what you said कि grief में भी जो हास्य का रस है, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में कोई भी कभी भी एक पॉइंट में सिर्फ एक रस नहीं होता है, एक भाव नहीं होता है, एक इमोशन नहीं होता है. हर एक इमोशन के भी तो नुआंसेस है ना. आप बहुत गुस्सा होते हैं, बीच में आपको हंसी भी आ जाती है, थोड़ा रोना भी आ जाता है, या फिर आपको रोना आ रहा है, फिर कुछ हो गया तो आपको मतलब आप मतलब वियर्ड हो जाता है, समझ बहुत, नहीं आता हाँ, है तो कैसे रिएक्ट. इट्स नेवर one stroke of emotion. And acting also is so, you know, such a beautiful craft because आप कुछ भी उसमें ही आपको ढूंढना पड़ता है, उसमें लेयर्स, यू नो. कभी भी ब्रॉड स्ट्रोक में खेलने में मज़ा नहीं है ना, वो नुआंस ढूंढने में ही मज़ा है, लेयर्स ढूंढने में मज़ा है. और स्क्रिप्ट में ऑलरेडी लिखा गया था, द नुआंसेस इन द स्क्रिप्ट विद इन व्हाट्स हैपनिंग इन द कैरेक्टर्स वर ऑलरेडी एक्सट्रीमली नुआंस्ड, यू नो. एंड द ह्यूमर, द इंट्रिंसिक ह्यूमर was already there. Like my favorite scene till now is when Dadi farts, and actually निजी जिंदगी में ऐसे होता है, you know. So but when I was yeah, सीन में एक्चुअली उन्होंने फाट किया था वो बेचारी इतनी इनोसेंट थी व्हाट्सएप की. इन्होंने सानिया से पूछा सीन से पहले, उन्होंने पढ़ तो लिया था, सानिया को उसे कॉन्फाइड करने लगी थी, तो सानिया के कान में पूछा, इस सीन में सचमुच फांट करना होगा क्या? तो कर दो तो सानिया ने भी बदमाश तो है, इसने बोला कर दो, उन्होंने एक्चुअली फांट कर दिया सीन के अंदर. what a fantastic actor. इट्स मेथड That's a एक्टिंग. skill, method. एक्चुअली फाट मेथड एक्टिंग का मतलब हाइट हो गया ये तो. ये अलग लेवल का स्किल है. अभी तक तो हमने रोना हंसना सीखा था टाइम पे, पर ये फाट तो करना पड़ेगा थोड़ा. एक्शन फाट का टाइमिंग. बट यू नो, आकांक्षा जैसी है, एक तो आकांक्षा और संध्या का जो कैरेक्टर है, जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यू नो. इट्स ऑल्सो clutter breaker because you don't actually normally शायद ऐसे ही होता होगा, but in mainstream cinema you don't see that, you know. The other woman always stays the other woman, and there's always a weird way to look at the other woman, you know. But what Umesh sir also said, that, you know, you also, I mean, me as an actor, I have to walk on a very tight rope, you know. She's not done anything wrong or bad. She's not a homebreaker, you know. She has only loved this person, and who Sandhya is married to, you know. And actually, if you start seeing from her perspective, she's also never wrong. So, and eventually, you realize that, you know, one thing Umesh sir had told me, that, you know, there's a lot happening within Akansha that she's not able to express, because Akansha is also somebody, actually grief, she's going through the real heartbreak, because probably she's still in love with this character, you know, Astik, but she can't show it, she can't express it, she can't probably never confide it. Maybe she doesn't have a friend to confide it in, you know. Maybe she also is in a way in a similar space where Sandhya is, and she doesn't have a friend who she can really tell how she's feeling. And they both find a strange friendship in this, you know, concoction of you know, of reality, and find mutual respect, which is so important, right? And she comes in Sandhya's life as a ray of hope, you know. She comes as a catalyst, shows Sandhya that she can also find herself and do what she wants to with her life. So Akansha and me, honestly, because I also, you know, it's a special appearance part. So I actually went in for, I had very few days I was shooting, and I went in Shanti Kunj, which is actually happens to be the house where I have shot for Jolly LV 2. I have shot for one more film. So this was my third film that I was shooting in that Haveli. And in fact, the owner came and said, "अरे मुझे सुनाई दिया कि आप इधर आए हो, मैं तो मिलने आई हूँ." I was like, "अरे आप," you know. So in a way, I knew the space. So maybe Akansha also knew the space. She could have come in with Astik in a very different time, you know,
as Astik's girlfriend or friend. And now when she comes in after the marriage, it's a different setup altogether, you know. And she comes in as an outsider, Akansha and Shayoni, because I went into Shanti Kunj to shoot, and there were these, you know, actors and tabartod actors. Matlab, you know, you're talking about legends here, and everyone is, you know, is an artist really over there. And I came in, and the first scene we shot was when Akansha meets, you know, the whole family. She comes in and she meets Sandhya for the first time, but everyone's there. And I felt what, in a way, Akansha was feeling. So it's almost like at a meta level, I was present, but as an outsider, sitting in awe and watching in awe of this amazingly mad, crazy and beautiful family. So yeah, it was really a wonderful experience. Yeah. व्हाट्सएप आप इतने अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, इसीलिए मतलब मन कर रहा है कुछ बोलने का। नहीं जरूर। और ये तो लोग आपने इतना सटीक सवाल पूछा कि ये जो कॉम्प्लेक्स इमोशन है, ये आपने कैसे डील कैसे किया इस चीज़ को। तो ये जो कॉम्प्लेक्स इमोशन है, ये एक्टर्स के साथ तो एक ऑर्गेनिक लेवल पे काम हो रहा था, जैसे मैंने कहा इंटरनलाइज किया, इम्प्रोवाइज हो रहा था, उसके बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और कुछ चीज़ निकल रही थी। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ये तब ज़्यादा समझ में आती है जब इसके लिए आप म्यूज़िक ढूंढने लगते हैं कि इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या होगा, कैसा होगा, आप इसकी क्या ब्रीफ दोगे। और आप ब्रीफ किसको दे रहे हो? अरिजीत सिंह को दे रहे हैं आप ब्रीफ। एंड अरिजीत सिंह, लाइक ऑल ऑफ अस, लाइक ऑल द एक्टर्स एंड अस, he had completely, you know, internalized the script and understood it. बाकी फिल्म का म्यूज़िक बैकग्राउंड हो गया, लेकिन जो शुरू के कुछ सीन थे, जैसे पेप्सी वाला सीन है या गद्दे वाला सीन है, अब मैं क्या बताऊँ, ये कॉमेडी भी नहीं है, मैं कह भी नहीं सकता ये टोंग टिंग टूंग कुछ ऐसा कर दो, तो वो भी नहीं है। अब वो केओस है, एक अजीब तरह का केओस है। सो अरिजीत टोल्ड मी ये तो साउंड ही नहीं है किसी इंस्ट्रूमेंट की, इसके लिए मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा कोई। तो मतलब मैंने कहा अच्छा, समझ नहीं आया कि क्या बोला जाए। वो तो उस्ताद हैं, मतलब तो उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते कि आप बार बार पूछ रहे हैं भाई बन गया, हेलो दे दो, रिलीज़ होने वाली है, दे दो। तो उसके 3 हफ्ते बाद उसका बड़ा एक्साइटेड सा फ़ोन आया कि हाँ सब। मैंने कहा क्या हो गया, हैव यू क्रैक्ड इट? ही सेड नहीं, वो जो इंस्ट्रूमेंट में सोच रहा था बनाने की, उसका डिज़ाइन बन गया। सो वो तब वहाँ जाके जो आप सवाल पूछे, समझ में आया कि यार आप इसको समझने लगते हो ना, तो वो सीन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो बाद में इतनी समझ में आती हैं कि यार कैसे हो गया ये। सो आई फेल्ट इट वाज सच अ क्वेश्चन दैट इट probably needed a sort of a little bit of more explanation. No, you have explained it really well. And चूंकि ये लोग मुझे बार-बार इशारा कर रहे हैं जल्दी खत्म कर दो, जल्दी खत्म कर दो। आप बातें बहुत प्यारी कर रहे हैं, हम आपने तो एक तो आपको ब्लू छोड़ेंगे कलर नहीं। पहना है, हम आपको जाने नहीं देने वाले। ये आस्ते का फेवरेट कलर। ये लोग जबरदस्ती भेजने पे उतारे हुए हैं। तो सानिया, देखिए ये एक टेंस सिचुएशन में कॉमेडी हो रही है यहाँ पे। तो सानिया एक Yes, चीज sir. और कि जैसे काफी इसमें, जैसा शयूनी ने बोला कि काफी दिग्गज कलाकार हैं और सब बड़े बड़े कलाकार, बहुत स्टैब्लिश, बहुत सालों से काम करने वाले, हाँ जी। उन सब के बीच आपको कहा गया कि ये आप हेडलाइन करो, आपका रोल ही मेन रोल है, मतलब वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, बीच में कहानी पगलेट के बारे में है, तुमको बनना है। तो वो उस टाइम कैसा लगा कि अरे मतलब, और सोलो लीड में, तो कैसा महसूस हो रहा था उस टाइम, क्या दिमाग में चल रहा था? मेरे लिए हम सब बहुत इम्पोर्टेंट है स्टोरी का, मतलब आप सिर्फ संध्या की स्टोरी नहीं कहूँगी मैं, ये सबकी है। हम सब एक ही इमोशन फील कर रहे हैं। जैसे सर ने बोला कि वो 5 स्टेजेस से संध्या गुजर रही है, वही 5 स्टेजेस से अम्मा, बाऊजी, परचून, आलोक, हम सब, इवन आकांक्षा, हर घर का हर सदस्य उसी, मतलब वो 5 स्टेजेस से गुजर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये सिर्फ संध्या की स्टोरी नहीं है, पूरे परिवार की स्टोरी है, सब एक साथ वो फील कर रहे हैं। और रही बात, जब मुझे फिल्म मिली थी, जब मुझे तो थोड़ा डाउट था कि मैं ये कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मुझे खुद पे भरोसा नहीं था। बट गुनीत और उमेश सर को मेरे पर मुझसे ज़्यादा भरोसा था, एंड वो कॉन्फिडेंस जितना उनको मेरे पर था, वो देख के मुझे लगा कि ये ऐसा कुछ है नहीं, मुझे लगता नहीं कि मैं ये ना कर पाऊँ। आई रिमेंबर आई डिड अ मीटिंग विद गुनीत,
और बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत पहले मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, उसके बाद फिर से आई, तो मेरा मन तो बहुत था करने का, क्योंकि एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको आप मना ही नहीं कर सकते हो। आप सुनो, आप पढ़ो, आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ऐसी फिल्म को मना कर दो। पर पता नहीं कहाँ मुझे एक डाउट था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट दे हैड सो मच कॉन्फिडेंस इन मी कि मैं कभी मना कर ही नहीं पाई। एंड आई एम ग्लैड नहीं करा, क्योंकि आई एम ग्रेटफुल कि मैं यहाँ बैठी हूँ। और फिल्म अब रिलीज़ होने वाली है 26 को No, no, on Netflix. I think I also think that it was a great decision to not say no to it, Thank क्योंकि you. फिल्म बहुत अच्छी बनी है। So on that note, all the best for your film. Thank Thank you you Thanks. so so much. much. Lovely Thank you. talking to you. talking. Lovely Thank talking you. to you.